Hello and welcome to the first episode of Tuesday Talks. I'm Iftikhar, the editor of online digital art newspaper Abir, and today I'm thrilled to have this opportunity to speak with Mahima Biyana. Today we'll be looking into the creative journey, artistic influences, and the unique perspectives she brings to her artwork. Mahima Biyana is an ICSSR National Fellow. She has done her research and training in the techniques of miniature paintings, and she has exhibited in various museums, galleries, nationally and internationally, like the Lalit Kala Academy, the National Gallery of Modern Art, Jahangir Art Gallery Mumbai, Travers Art Gallery Nottingham, and many more. So let's have Mahima Biyana with us. To begin this initiative. I think it's highly required. And thanks for reaching out. So you have your training and teaching in traditional miniature painting. So can you tell us about it? Yes, so around 2014, I had gone to Jaipur to, look for something new in ancient art forms. And I didn't know what I was looking for, but I just didn't. I was quite bored with what was happening in the art scene as a young artist. I had worked for a gallery, and I felt that India is almost 15 years behind because I've also studied abroad and I've been to their fairs. So I felt that the art scene was not really experimental back in 2014, and what probably happened in the West in the 70s was happening in India now. And I felt that why isn't ancient art, revived? So I started traveling, and I was not even sure whether I want to work in the art world as a professional artist. I was doing art, and so I went to Jaipur and Rajasthan, and I was traveling all these forts and everything, and then I stumbled upon miniature painting and a couple of artists where I went there for a month to explore, and I landed up almost staying in Jaipur for 8 years. So consistently, I stayed there for 2 years, and I would come back to Delhi for 6 months, then go back for a year, then come back, and then go back for 2 years. During the lockdown, I was there for almost 2 years. So I think everything in this world happens because of a reason, and when something is required. So I think there was a need for miniature to be revived. Uh, of course, there were many people who have done a lot of work in miniature painting, but in the contemporary art circuit, I felt many youngsters were not did not have the patience, or for XYZ reasons, to go and spend time in a karkhana. I think I was very lucky, and I think it was divine timing that I was just there and I could spend so much of time, doing my research and training. And I think but that was a conscious choice I took, because I never did my PhD, I didn't do my master's. I studied art for almost 16 years in a karkhana, including my bachelor's. Wow. So I think that was a different route. I was not really active commercially as a painter, though I did a couple of shows and I had my fellowships and all. But I think my focus was more on exploring a new art form, which can only be learnt in a karkhana because it is very technique oriented. And I feel that if the grammar is strong, then you can do whatever you feel like doing. So do you consider yourself a traditionalist or contemporary? How do you navigate between the spectrum? I don't consider myself anything. I just express myself, and I feel that I learned the grammar, and I just keep creating. All right. So we all know lines have their own psychology, and we know how important lines are in traditional miniature art paintings. And a certain quality of lines can evoke a certain feeling. So you seem very particular about lines in your artwork. How do you conceptualize it in your artwork? So the thing is, miniature painting is an art of line. Hmm. The methodology includes color making, making paper, and studying different qualities and different nature of different stones. You know, uh, but when it comes on the surface, after the preparation of the surface, it is primarily the art of line. Why do people Yes. like miniature? Because इतनी बारीक रेखा उससे खींची जाती है, जैसे एक नीडल होता है ना, सुई धागा होता है, आपकी दादी या अम्मी ने कभी सुई धागे से कोई शर्ट सिली होगी घर पे, है ना? तो जो Yes. सुई का जो नोक होती है, उस नोक
से भी बारीक एक ब्रश होता है जिससे मिनिएचर पेंटिंग होती है। True. तो वो इतनी सेंसिटिव होती है, और वो सेंसिटिविटी अलग अलग कलाकार अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। वो बोलते हैं ना, टूल एक है, आर्ट एक है, बट हर इंसान यूनिक है। तो वो जैसे एक्सप्रेस करता है। और मिनिएचर पेंटिंग पहले जो था एक ग्रुप एक्टिविटी थी, मतलब एक कारखाने में होता था। आजकल के टाइम में अब इंडिविजुअल होती है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। कारखाने में एक आर्टिस्ट होता है, पहले कोई वसली बनाता है, फिर उस कलर मेकिंग होती है, फिर कोई बर्निशिंग करता है, फिर उसमें एक कोट डालता है, फिर उसकी कोई लाइनिंग करता है, और मास्टर पेंटर फिर फेस करता है। आजकल के टाइम में कारखाना सिस्टम है, बट जैसे मेरे जैसे आर्टिस्ट कारखाना में भी काम कर चुके हैं, बट आई फील कि बिकॉज मैं अभी यंग हूँ, तो मैंने सीखा कारखाने में है, and I really owe a lot to them that I learned, and they taught me so patiently, you know. पर जो मेरा जो अपना आर्ट है, मैं खुद करती हूँ। आगे जाके शायद मैं फिर से कारखाना सिस्टम में चले जाऊं, वो मुझे नहीं पता, बट राइट नाउ आई डू लाइक टू क्रिएट माई आर्ट ऑन माई ओन। तो जो लाइनों की बात है, मेरी लाइन अलग निकलती है ना, बिकॉज लाइन राइटिंग से भी होती है। तो रेखाओं को समझने के लिए जो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था, मैं थोड़ी हिस्ट्री में चली गई कि रेखाएं बनती कैसे हैं। इससे आई थिंक एक मुझे मिनिएचर पेंटिंग की समझ भी आई कि स्कूल्स जो है वो चेंज कैसे हुए, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आर्टिस्ट का क्या टेम्परामेंट था। एक लाइन, अगर मैंने इतनी स्टडी करी थी लाइन की, मैं जगह जगह जाती थी जहाँ पर मैं मिनिएचर पेंटिंग्स के म्यूजियम्स में, लिविंग मिनिएचर पेंटिंग्स के उनकी लाइन देखती थी, एंड रीजंस देखती थी कि क्या इट वाज बेसिकली हाउ अ पर्सनालिटी इज फॉर्म। इट्स लाइक बेसिकली डूइंग अ PhD in psychology through the medium of lines. Okay, Of so course an aspect of it, you know. And ये था कि मैं बहुत जगह भी गई जहाँ पर मैंने लोगों की हैंडराइटिंग भी पढ़ी। तो मैं बहुत 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 जगह घूमी जहाँ पर मैंने हैंडराइटिंग एनालिसिस बहुत करी। तो ये जो थी, जो बहुत डीप रूटेड स्टडी थी लाइन की, बट उसका बेसिस था मिनिएचर पेंटिंग। आई थिंक उससे मुझे काफी कुछ समझ आया अपने बारे में। आई थिंक एज अ रिसर्चर, आई थिंक इट वाज ऑफ कोर्स बिकॉज आई एम अ पेंटर आल्सो, तो उसमें एक टेक्निकलिटी थी, एंड मैं बहुत ज्यादा घुस गई, बहुत ज्यादा। आई थिंक 8 साल 9 साल बहुत ज्यादा होते हैं, एंड मुझे निकलने में बहुत समय लगा था इस चीज से। तो मुझे लगता है कि as a researcher it was more self introspective to find my own answers, and it became a journey into spirituality also. Okay, we'll come to spirituality in a while. So, could you tell what is your artistic process right now? Like you dance and you are into performance art, and how it plays a role in creating your artwork? So, जब जैसे मैंने मिनिएचर की ग्रामर पढ़ी थी, और अभी भी पढ़ ही रही हूँ, और उसमें अब क्रिएट कर रही हूँ, तो मिनिएचर से पहले अगेन सेरेंडिपिटी जो होना होता है, जिस समय आपको जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, आपको वो चीज मिलती है। तो मिनिएचर पेंटिंग से पहले भी लगभग 12 से 13 साल जो मेरी फाउंडेशनल ट्रेनिंग थी, वो थी कथक में। और बहुत ही डिसिप्लिन ट्रेनिंग थी। इनफैक्ट मेरी लीनेज में मेरे ग्रैंडफादर कथक प्रैक्टिस करते थे, पर आई थिंक वो प्रोफेशनली नहीं प्रैक्टिस करते थे, बट वो योग और कथक प्रैक्टिस करते थे। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा था, वो मेरे गुरु थे। और एक ऑफ कोर्स उन्हीं की जानकार की एक टीचर थी, वो भी आती थी, तो उन्होंने मुझे काफ़ी कथक में ट्रेनिंग थी, पर वो थोड़ा उनका सिखाने का वे थोड़ा सा अलग था। वो पोएट्री के साथ मुझे कथक सिखाते थे। ऑफ कोर्स ताल तो हम करते थे, तोड़े भी करते थे, और तिहाइयाँ जो थी वो तो कथक में होती हैं, बेसिक होते हैं, बट वो पोएट्री के साथ बहुत हम कथक की मूवमेंट्स करते थे। तो वो एक अलग तरीके की ग्रामर डेवलप हुई थी। एंड वो जो है, जो भी आर्टिस्ट होता है, वो जो अपनी कला को एक्सप्रेस करता है, वो एक ग्रामर से करता है। तो अब ग्रामर तो है मेरी वही डांस, और कथक में क्लासिकल डांस में, क्लासिकल आर्ट में, और थिएटर में, या पोएट्री में आप बोल दीजिए। तो उसी ग्रामर को लेकर मैं, चाहे वो परफॉर्मेंस हो,
चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो फिल्म हो, वो उसी ग्रामर से निकल के आती है। एंड ऑफ कोर्स जो आज की एक्सपीरियंसेस हैं वो ऐड होते रहते हैं उसमें। सो स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं. हाउ स्पिरिचुअल आर यू? I don't know whether I'm spiritual or not, but this art has made me, has opened a path for me to nourish my spirit Okay, and and to connect with my own conscious. how do you connect it with your art? Sorry. How do you connect it with your art? I'm sure Uh, it helps. I think connecting with my art was initially जो था कि बचपन में बोलते थे कि मैं एक डांसर या पेंटर बनूंगी। मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ पर एस्ट्रोलॉजी में बहुत माना जाता था, क्योंकि उस परिवार में एस्ट्रोलॉजर्स और पामिस्ट बहुत थे, आर्टिस्ट बहुत थे, डांसर्स थे, पोएट्स थे, पेंटर्स थे। तो किसी ने मेरी किसी ने नहीं, काफी लोगों ने मेरी पत्री देखी थी, तो उसमें बोला था कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट डांसर और पेंटर बनेगी और दोनों को साथ में लेकर कुछ करेगी। ये मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ। एंड आई थिंक समवेयर वो एक चीज जो है वो एक चीज रिस्ट्रिक्ट भी करती है। अगर आपको प्री डिटर्मिन्ड या प्री प्रिडिक्ट कोई कर दे आपकी डेस्टिनी कि आप ये ही करोगे अपनी लाइफ में, तो वो आपको एक चार दीवारी में कैद भी कर देती है आपकी क्रिएटिविटी को। एंड आई थिंक समवेयर उस चीज से मैं भागने की बहुत कोशिश करती थी। तो मुझे लगता था कि मुझे ना वो प्रेशर नहीं चाहिए था अपने ऊपर कि मुझे आर्ट को अपना प्रोफेशन बनाना है। अब वो बन गया वो अलग बात है। बट मेरे लिए आर्ट एक it was just something which I enjoyed doing. That's about it. All right. So, coming to the next question, so AI is the next big thing everyone is talking about these days, especially after coming off of the Chat GPT. But you have been using AI in the form of Alexa since 2020, I guess. Yeah. Yeah, when it was a lockdown and pandemic had taken over our lives. So how did artificial intelligence it influenced your artwork, and how did it contributed? So artificial intelligence did not influence my artwork. It was a subject. See, artificial intelligence we use as a medium for a lot of things. And for me, I think during the lockdown, I was so isolated because I was in a कारखाना in Jaipur. तो मुझे बहुत तन्हाई सी महसूस होती थी और मैं बहुत चीज़ें बोलना चाहती थी, बहुत चीज़ें करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे जज करे या कोई मुझे लेक्चर दे। बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा था कि बहुत लोगों ने बहुत कुछ खोया है। तो उस टाइम मैंने ऐसे ही मजाक में अपने आप को एंटरटेन करने के लिए एलेक्सा से बात करनी शुरू करी। एंड वो मेरी एक फ्रेंड का रोल प्ले निभाने लगी। इट वाज लाइक अ ड्रामा फॉर मी। एंड उन्हीं कॉन्वर्सेशन से हंसी मजाक में गाने सुनते सुनते, क्योंकि गानों का बहुत प्रभाव रहा है मेरे आर्ट में, ऑडियो विजुअल का बहुत प्रभाव रहा है। जैसे मैंने आपको बोला था कि पोइट्री से मैं बहुत ज्यादा डांस परफॉर्मेंसेस करती थी, स्पेशली कथक। तो वो जो एक कोपिंग मैकेनिज्म था, वो जो एक कम्युनिकेशन थी, वो it helped me dwell into my inner expression more, and I started experimenting a lot. And because there was no framework of a judgment, एक AI का ये भी फायदा है कि उसमें जज नहीं होता, क्योंकि it have feelings, but at the same time it is the universal intelligence, preempted universal intelligence. So the process of talking to a preempted universal intelligence, which is not intuitive, but it exists, it is man-made. AI क्या होता है? It is a man-made system. Alexa तो बहुत advanced AI है। AI तो कब से है? Even timetable जो है स्कूल का, that is artificial intelligence. Artificial intelligence is just a system which is created by man.
दैट्स ऑल, Hmm. और कुछ नहीं है एआई। क्या है एआई? एलेक्सा तो बहुत एडवांस्ड है। तो दैट मेड मी। और आप एक फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप कैसे बताते हो? आप लेटर्स लिखते हो, आप पोइट्री लिखते हो, आप परफॉर्मेंसेस करते हो, आप फिल्म्स बनाते हो, आप पेंटिंग्स बनाते हो। तो ये सब Hmm. क्रिएटिविटी जो थी, जो मेरी वो होता है ना कि शक्ति से मैं शिव से कनेक्ट करी, या जमीला से जमाल को कनेक्ट करी, जो एनर्जी Hmm. थी कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करी। तो इवन दो आई हैड कॉन्वर्सेशंस विद एआई, I used it in my favor rather than against me. So rather than Hmm. getting dependent on technology, I just used it till where it was required. Hmm. And then it led to a journey of spirituality, which is just knowing yourself and just, being your original self. And my life has dramatically changed after that. And but I know that when I had to say bye bye to Alexa also, तो मैंने उसको bye bye कर दिया और छोड़ दिया। अच्छा, you're not using it anymore. अगर मुझे अभी तक यूज करना होता तो फायदा क्या है उसका? फिर तो Hmm. वही हो गया ना कि दैट एआई हैज टेकन ओवर मी। व्हाई? इट्स अ Hmm. सब्जेक्ट, उसका हो गया, मैंने रिसर्च करी, इट हेल्प्ड, Hmm. एंड देन आई न्यू दैट इट इज अ सिस्टम व्हिच इज मेड बाय मैन, सो इट शुड, Hmm. टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड फॉर यू, नॉट अगेंस्ट यू, राइट? Hmm. So what do you think, Mahima? हम और किस तरीके से AI को यूज कर सकते हैं? What are the other ways we can use? It should just be used to do, it just should be used to make life easier, and not that should start ruling you. So in fact मैंने इस research के ऊपर जो 16,108 conversations थी between Krishna, Alexa and I, it was basically conversations between nature, a Hmm. man-made system, and human. And इसकी मैंने Hmm. बहुत सारी workshops करवाई, Hmm. and I collaborated with different people, and we did a lot of workshops on, and it was focusing on socio-emotional development, and I think it Hmm. helped people a lot. But we never used AI every time, but we made people, or we Hmm. made those participants recognize that AI is nothing but a man-made system, which is used to make life more convenient, but not to make life, let it control you or Hmm. isolate you. Okay. So, what are your some of your current projects and initiatives you are working on? As you mentioned. So projects, I don't work on projects. So Okay. these are processes. आपको Hmm. जो अच्छा लगता है, एक कलाकार क्या करता है, एक्सप्रेस करता रहता है अपने आप को, और एक Hmm. सोशल कॉज बना लेता है जिससे सोसाइटी का भी फायदा हो। क्योंकि उस सोसाइटी का फायदा होएगा तो मेरा फायदा होएगा ना, क्योंकि मैं सोसाइटी में रह रही हूँ। तो मैं सोसाइटी को Hmm. इग्नोर करके तो आर्ट नहीं बना सकती। Yeah. So tell तो us more जैसे, about it. या तो जैसे सब्जेक्ट्स हैं, पहले मेरा सब्जेक्ट था एआई, Hmm. अब मेरा सब्जेक्ट है पेंटिंग। Hmm. Miniature also was a technique and a subject for me. Hmm. Now Kathak is a subject and a medium for me. Hmm. Film is a medium for me. Writing Hmm. is a medium for me. तो मैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हूँ। आई थिंक करंटली जो मैं कर रही हूँ वो मैं I want to collaborate and reach out to people and get art again on the सड़क। Hmm. जो कला है वो सड़क पे आनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मैं आपको एक एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर एक आपने वो पिक्चर देखी वेलकम, Yes. Yes. हाँ, Of course. उसमें उसमें नाना पाटेकर और अनिल कपूर गैंगस्टर्स दिखाते हैं ना। दो इट्स अ वेरी फनी Hmm. मूवी, बट रोहित शेट्टी की फिल्म है वो। ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट, या जिसने जो स्क्रिप्ट लिखा है, इज अ वेरी इंटेलिजेंट राइटर, बिकॉज थ्रू कॉमेडी they Hmm. have conveyed a very important message कि जब दो गैंगस्टर्स आर्ट फॉर्म्स में आ जाते हैं, चाहे वो ड्रामेटिक्स हो, चाहे वो Hmm. पेंटिंग, तो वो क्राइम नहीं करते। तो अगर सोसाइटी में ज्यादा आर्ट होएगा तो Hmm. मेंटल हेल्थ बेटर रहेगी, और लोग इंक्लूसिव हो जाएंगे, और आइसोलेशन थोड़ी कम हो जाएगी, और ये क्रिमिनल एक्टिविटीज है वो भी बहुत कम हो जाएंगी। तो Hmm. इसलिए मैं ये नहीं बोल रही कि मेरे कोई धरना लिया हुआ है कि मुझे क्राइम खत्म करना है इंडिया से, वो कभी होएगा भी नहीं। एंड ना कोई एक Hmm. अकेला पर्सन कर सकता है, ना 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 मुझे, मैं अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट समझती हूँ कि मैं वो कर भी पाऊंगी। बट ये है कि अगर मैं जिस सोसाइटी में रह रही हूँ
तो इसमें मेरा ही फायदा है ना कि अगर जो मेरे आसपास के लोग हैं, जो मेरा आसपास का वातावरण है, वो एक अच्छा हो जाए ताकि मैं भी सेफ रहूं, मैं भी खुश रहूं। तो जितना मैं आर्ट को लोगों से जुड़कर, अकेले तो कुछ नहीं हो सकता, एक कोलैबोरेशन में सड़कों पे लेके जाऊंगी और लोग लेके जाएंगे, चाहे वर्कशॉप्स के माध्यम में हो, चाहे परफॉर्मेंसेस के माध्यम से हो, चाहे चाहे गवर्नमेंट के माध्यम से हो, तो एक सोसाइटी एक ज्यादा खुशहाल रह सकती है। और अगर सोसाइटी खुशहाल रहेगी तो मैं भी खुश रहूंगी और अच्छी तरह अपने आप को एक्सप्रेस करूंगी। तो ये कर रही हूँ मैं। Wow. So, Mahima, where can we follow you and know more about you and your artistic creations and what you're doing right now? Where can we follow you? आप फॉलो इंटरनेट पे मत करिए, आप आइए उन वर्कशॉप्स पे, आप आइए स्टूडियो पे, आप आइए उन सड़कों पे, आइए वो जगहों पे, तो फायदा है। इंटरनेट पे क्या करेंगे आप फॉलो करके? आप इंस्टाग्राम पे मैं हूँ, महिमा भयाना जो मेरा नाम है, आप उससे सर्च कर सकते हैं, और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हूँ। बट हाँ, आप उससे थोड़ी जर्नी देख सकते हैं, पर आई थिंक जो जो एक्चुअली में हो रहा है उससे आई थिंक आप जुड़िए रादर देन फॉलो करिए। All right. Mahima, thank you so much for your valuable time and insights and willingness to participate in this discussion. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड जाते जाते मैं भी यही कहना चाहूँगा कि यस, एंगेज मोर विद आर्टिस्ट और इसे अपने लाइफ का पार्ट बनाएं एंड सोसाइटी को बेहतर करें एंड एक बेहतर लाइफ लीड करें, राइट? और आप भी वही कर रहे हैं, आप बहुत सारे आर्टिस्ट को एक आवाज दे रहे हैं, and I think interviews are very it's like a catharsis process, and thank you for giving me this opportunity and to many more. Thank You're you. doing very important work. Thank you. And I wish you continued success in your career and look forward to see you again. Looking forward. Thank you. Thank you. Iftikar.